नमस्कार दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में खुश होंगे और खुश रहिए। दोस्तों, as we have discussed the topic the sphere in the surface areas and volumes, so today we are going to discuss few questions of the exercise 13.4 related to the sphere. So in this exercise, see, the first question is given: find the surface areas of sphere whose radius are given. There are three parts. Two parts I am going to discuss over here. So one part you have to solve by your own self. So friends, here the first part is given. Radius is 10.5 centimeter. So let's find, as since radius is 10.5 centimeter, so let's find it surface area of the sphere. So therefore surface area of the sphere is equals to formula, you know that it is 4 pi r square. Now radius you have given. Now substitute the value of pi and radius. 4 pi is 22 upon 7 and radius is given 10.5 centimeter square. So square centimeter will be the surface area of this. Now let's simplify it. 88, 4, 20 is a 7 multiplied by 10.5 into 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं. विद द 7 दिस 10.5 is cancelled. 7 1 is 7. Then 3 is remaining and 35, 7 5 is 35. So what you got? 88 multiplied by 1.5 multiplied by 10.5. So 20 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 88 into 1.5 can be written as 3 by 2 and this 10.5 can be written as 105 divided by 10. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. So 2 44s are, so 3 4s are 12, 3 4s are 12, 113 multiplied by 105 divided by 10 centimeter square. Right friends? तो अभी हम क्या करते हैं? These numbers we have multiplied and divided by 10. We will get our surface area of this sphere. Right? So 132 multiplied by 105. So let's multiply. 135 32 multiplied by 105. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 116, 5 1s are 5, 16, 0 2 3 1, 0 6 8 3 1. So what we got? हमें क्या मिला? 13,860 divided by 10. So हमारा आंसर क्या मिला? 1386 centimeter square is our required answer. Right friends? So first part हमने complete किया. After completing this first part, let's see the second part and इसका भी surface area find करते हैं with the same formula. इसलिए हमने third part लिया नहीं, because same we are going to find out, तो उसको तो आप find कर ही सकते हो. So let's find out the surface area of the second part. So surface area of sphere will be equals to 4 pi r square. वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. 4 पाई की वैल्यू
22/7 और रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर एंड यूनिट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं। 88/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.6 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं। 7 8 जा 0.8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 plus 6 that will be 70 means 70.4 multiplied by 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70.0 इंटू 5.6, सो 70.0.4 मल्टीप्लाइड बाई 5.6, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, 5 4 जा 20 and 5 7 जा 35, 4 2 4 9 and 3. Our answer is 394.24 centimeter square. So right friends, so the answer of both the parts, first part surface area of this whose radius was 10.5 is 1386 centimeter square, or the answer of the second part is 394.24 centimeter square. Right friends, so here as we simplify to find the surface area, first of all you know that स्फेयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस होता है, और उस सरफेस का एरिया हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, 4πr², जैसा कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो बेस्ड ऑन दैट इंट्रोडक्टरी पार्ट वी नो दैट सरफेस एरिया, जो सिंगल सरफेस होता है स्फेयर में, वो सरफेस एरिया इस क्या होता है, दैट इज 4πr²। जब हमको हमारा रेडियस फाइंड है, रेडियस इज नोन क्वांटिटी, तो सरफेस एरिया को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर इन द फर्स्ट पार्ट रेडियस वाज 10.5 एंड सेकेंड पार्ट इट वाज 5.6। हमने 4πr² वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई किया और हमें आंसर मिला फर्स्ट पार्ट का 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड पार्ट का 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप you all are understand, you all are, अभी आपको कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अगर कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप मल्टीप्लाई करके देखो और आंसर को सेल्फ फाइंड करो। सो हमने अभी क्या बताया आपको, आई टोल्ड यू टू सॉल्व द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिए, so third part you need to solve by your own self, right friends? Okay friends, so let's see the second question of this exercise. In this, अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि आप सरफेस एरिया उस स्फेयर का फाइंड किए जिसका रेडियस दिया गया था, बट हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू कैन अंडरस्टैंड हियर? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर। यहाँ पे डायमीटर आपको दिया गया है। सो एज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, तो वी नीड टू फाइंड आउट इट्स रेडियस फर्स्ट ऑफ ऑल। रेडियस फाइंड करने के बाद द सेम प्रोसीजर दैट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सॉल्व इट। यहाँ पे भी आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बट हम आपको यहाँ पे 2 ही पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और उस with the help of those 2 parts you need to solve the third one. हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिया है, सेकेंड पार्ट you need to solve it. तो देखते हैं दोस्तों सेकेंड पार्ट हम किस तरह सॉल्व करते हैं। As diameter is 14 centimeter, since diameter is 14 centimeter, so radius will be, therefore you can say radius is the half of diameter,
it means 14/2 centimeter. That is equals to 7 सेंटीमीटर. मीन्स रेडियस आ गया इसका 7 सेंटीमीटर. अभी हम सरफेस एरिया जैसा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एज इट इज वी कैन सॉल्व दिस इज. चलो तो सरफेस एरिया इसका फाइंड कर लेते हैं. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट फ्रेंड्स. सो दिस कैन बी रिटन एज 4 into 22/7 multiplied by 7 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बेटा 1 से 7 इज कैंसल. अभी हमारे पास 3 नंबर 4, 22 और 7. दिस वी कैन, हमारे पास ये 3 नंबर्स आर रिमेनिंग. इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा इजीली. सो आर नंबर्स आर 4 into 22 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई करते हैं. 4 2 is 8, that is 88 multiplied by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 8 जा 56 प्लस 5 56 प्लस 5 61 मीन्स 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ओके फ्रेंड्स. सो सेम एज इट इज वी नीड टू फाइंड आउट the surface area of this whose diameter is 3.5 centimeter. So let's find its radius first of all. Same as, since diameter is 3.5 centimeter, 5 meter, therefore radius will be half of this meter. Same as it is we need to leave. उसको 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, सेम एज इट इज छोड़ ही देते हैं और फिर कैलकुलेशन में हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. So therefore surface area of the sphere is equals to 4 pi r square. वैल्यू रखते हैं. 4 pi is 22/7 और रेडियस है 3.5/2. बट हियर वी नीड टू राइट डाउन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसका डायमीटर मीटर में दिया गया है. ठीक है ना. चलो. सो 4 22/7 इंटू 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.5/2 मीटर स्क्वायर. 2 2 ज़ा 4 इज कैंसिल. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 7 5 ज़ा 0.5. नाउ वी गॉट 22 multiplied by 0.5 and 3.5 मीटर स्क्वायर. राइट फ्रेंड्स. कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होता है तो बताइएगा. अभी हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. व्हेन यू मल्टीप्लाई 22 इंटू 0.5 यू विल गेट 11 इंटू 3.5 मीटर स्क्वायर. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 3 ज़ा 33 प्लस 5 इज 38 meter square is the answer of this third part. Right friends. So दोस्तों I think हमने easiest वे में आपको समझाया जैसा कि आप समझ सकते हो. आफ्टरवर्ड्स सेम मेथड जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अडॉप्ट किया था वही मेथड हम इस सेकंड क्वेश्चन में भी अडॉप्ट किए. बस थोड़ा सा डिफरेंस था. यहाँ पे डायमीटर दिया था तो हम डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट कर ही लेते हैं. एज यू नो दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. ओके फ्रेंड्स. कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा या आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. ठीक है. एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 3. गिवन दैट इन दिस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हम हेमिस्फेयर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं. एंड आई थिंक हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर में कितने सरफेसेस होते हैं और उस सरफेस का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं.
हेमिस्फेयर में स्पेशली दो सर्फेसेस होते हैं, एक कॉर्ड सरफेस और एक फ्लैट सरफेस। दैट फ्लैट सरफेस इज सर्कुलर। इसका कॉर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², हाफ ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। बट सेकेंड सरफेस जो होता है वो सर्कुलर होता है और उसका एरिया आप जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज πr²। सो वी नीड टू कैलकुलेट in the hemisphere there are two types of surface. One is chord surface and second is the total surface. So the chord surface area of hemisphere is 2πr² and total surface area of hemisphere is 3πr². So here we are going to apply the total surface area of hemisphere, that is 3πr². Radius is given here and क्वेश्चन में आपको ये भी दिया है कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14. सो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, इफ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ पाई इन द क्वेश्चन, तो जो वैल्यू आपको दी रही है होगी उस वैल्यू को पाई के प्लेस पे यूज करेंगे। और सपोज अगर पाई की वैल्यू आपको नहीं दी गई है तो आप पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी गई है, अकॉर्डिंग जो वैल्यू दी रही होगी वही वैल्यू आप यूज करेंगे। सपोज हियर इट इज गिवन पाई इज 3.14, तो हम पाई की वैल्यू 3.14 ही यूज करेंगे, न कि 22/7। बट कभी कभी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी रही होती है, तो आप क्या करोगे, वहां पे पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करोगे। राइट, चलो देखते हैं यहाँ पे, सिंस यू नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 3πr², जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। रेडियस इज 3πr² में सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है विच इज रेडियस, और यहाँ पे द वैल्यू ऑफ दैट अननोन क्वांटिटी इज गिवन विच इज 10 सेंटीमीटर. सो सिंस radius of hemisphere is given, which is 3πr². ठीक है, अभी हम सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पाई की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सॉरी, since radius of the sphere is r, since radius of sphere is r, और उस r की वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ अभी हमें कैलकुलेट करना है इस हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया. तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. सो एज वी नो दैट, therefore total surface area of hemisphere is equals to equals to what, 3πr². अभी हम पाई की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे और r की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, सो 3, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 और रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. सो 10 और इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर. राइट फ्रेंड्स, ये स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह भी लिखा जाता है. Sometimes it is written in this form. So don't be confused. This is also a square centimeter. This is also a square centimeter. So let's find out the value of this is 3 multiplied by 3.14 into square of 10 is 100 square centimeter. Now when you multiply this 3.14 by 100, so you will get 314. अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ दिस हैपेंस. आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा. और ये याद रखो बेटा, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10, 100, 1000 ये सिखाया गया होगा इन योर लोअर क्लासेस. तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई है और 100 में कितने जीरोज होते हैं, देयर आर 2 जीरोज. ये 2 जीरोज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे किससे,
यहाँ पे डेसिमल आप देखेंगे कि आफ्टर 2 डिजिट इट इज 1 and 2, तो बेटा those 2 zeros is neutralized by these 2 places. That's why we got 3.14 is into 100 is equals to 314. अभी हम इस 314 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3, 1 4 and 3 3 जा 9, 942 centimeter square. Therefore our required answer is what? 942 square centimeter is the total surface area of हेमिस्फीयर. ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आपको लगता हो तो आप कॉल कीजिएगा, राइट. और वंस अगेन आई एम सेइंग दैट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब हम आपको वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, राइट.